Hello everyone, welcome to the Railwayman. Today we will discuss some questions syllabus environment based on the PIQs. Okay, first you just attempt these questions, then see the answers. Okay, just pause the video, then attempt, then see the answers. Okay, first, in which year Wildlife Protection Act was passed in India? That will be 1972. Okay, then हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? कभी कभी स्टैटिक पूछ लेता है, सो द राइट आंसर विल बी 6. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 related to this. After this project tiger 1973, some static part is here and I am mentioning, just take the note. Elephant, that is 1992. Project rhinos, that is 1987. This was the first, the rhinos in the Kaziranga National Park, to focus on Kaziranga. So this was initiated. Thereafter phase 2 in 2005. If the question will come project rhinos, you will just simply 1987. अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर 2005 रहता है तो दिस विल बी द आंसर. देन प्रोजेक्ट रेड पांडा, year 1996. Then project Thamin, that is 1977. Thereafter another important project Hangul, 1917. This Hangul is also known as Kashmiri Stag. This is a state animal of Jammu and Kashmir. This Kashmiri stag, where it is seen very much, that is Dachigram National Park, that is in J&K. And sometimes question asked, Kashmiri stag IUCN में क्या है? यह है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. ओके, सो मेनी इन्फॉर्मेशन हेयर, जस्ट आराम से लिख लेना. ओके, देन व्हाट डज WCCB स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट? द राइट आंसर वुड बी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB. It was established by the Government of India in the year 2006. It is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFC. Okay. Next, the Global Climate Change Alliance, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GCCA, is an initiative of, the right answer will be the European Union. In the year 2007 में ये लोग ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस बनाता है. इसका जो यूरोपियन यूनियन है, अभी इसका कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेंगे. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन ब्रसेल्स, बेल्जियम. एंड टेल द नेम ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है, दैट इज नेटो. ओके, नेटो का कब है? 1949 अप्रैल 4. एंड ऑलरेडी आई सेड द चीफ ऑफ नेटो इज मार्क रूटी. एंड कितना मेंबर्स है नेटो में? 32. 30 यूरोपियन यूनियन प्लस USA प्लस कनाडा. ओके, अभी आते हैं यूरोपियन यूनियन में. हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम. अभी यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं? देयर इज 27. देन लास्ट वन इज क्रोएशिया, तो होता है 28. बट लास्ट ईयर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, ब्रेक्जिट जो हम तो जानते हैं, ब्रेक्जिट. सो अभी 27, एक ऐड हुआ क्रोएशिया, देन 28 हुआ, देन ब्रिटेन ब्रेक्सिट में चला गया, देन अभी यूरोपियन यूनियन में सदस्य है 27. अभी इसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, इसके तरह हम लोग का तमिलनाडु में, तमिलनाडु इज द स्टेट who launch its own climate change mission. Okay, so ये याद रखेंगे. Next, the in which year was the Environment Protection Act EPA Act was passed, and this is very important, that is 1986.
नेक्स्ट द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दैट इज June 5. Okay, why June 5 celebrated as World Environment Day? Because in 1972 UNEP was established and इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी, which is in Kenya. And what is the theme of the 2025 में? एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशंस. ओके, अभी 2024 का भी पूछ सकता है एनटीपीसी में. सो व्हाट विल बी द थीम? दैट इज जेनरेशन restoration. Okay, next, which sector is the biggest emitter of the greenhouse gas? The right answer will be energy sector. Okay, energy sector से ही greenhouse gas ज़्यादा निकलते हैं. देन आता है which one of the major factor responsible for the deforestations? ये सब कॉमन क्वेश्चंस है एंड ऑल्सो द POQs. ओके, so not the drought, not the cyclone, not the eruption of volcanic. We know agriculture because मतलब जितना हम एग्रीकल्चर करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए फील्ड हम लोग को चाहिए होगा एंड कैसे फील्ड मिलेगा? टू डिफॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट काट के ही हम लोग एग्रीकल्चर का फील्ड बनाते हैं. पहले पहले कितना बहुत फॉरेस्ट होता था, तो अभी इतना कैसे एग्रीकल्चरल फील्ड है अवेलेबल टू काट दोज, मतलब बाई काटिंग दोज फॉरेस्ट अभी एग्रीकल्चर इतना फील्ड हम लोग को मतलब हम देख पाते हैं. ओके, एंड एग्रीकल्चर इट 80% इज द रीजन फॉर द डिफॉरेस्टेशंस. ओके, 80%. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट desertification and drought observed? Very day, very important day, and the day is June 17. Okay, next, when is the World Environment Day celebrated? We all know June 5. So very important, 1972 as I said earlier. Then आता है the Earth Summit, also known as Earth Summit. बहुत सारा Earth Summit है and वो बाद में बोलेंगे. अभी Earth Summit also known as Rio Summit. Okay, एंड इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. क्योटो प्रोटोकॉल, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल 1997. अभी जस्ट ईयर, अब मतलब अगर जानोगे तो वो ही एनफ होगा फॉर एनटीपीसी सीजीएल एनी काइंड ऑफ स्टैटिक जहाँ पे आते हैं. एंड दिस इज अंडर द UNFCCC एंड द थिंग इज, मेन थिंग इज क्योटो प्रोटोकॉल वाज लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स. हु वाज द मेंबर्स इन दिस प्रोटोकॉल, मतलब जो लोग इनमें भाग लिए थे. द एनी प्रोटोकॉल दैट इज लीगली बाइंडिंग, द क्योटो प्रोटोकॉल, एंड 1997 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. अब इसका मेन जो रीज़न था वो था कि ना फॉर द यूरोपियन कम्युनिटी, इसमें जो भाग थे यूरोपियन कम्युनिटी प्लस जो इंडस्ट्रियल नेशंस है वो सब मिलके ये हुआ था. एंड द मेन थीम वाज रिड्यूस greenhouse gas emission. Okay, and the protocol was took place 1987, but India signed this in 2002. important है, just याद रखना. Then agenda 21. What is agenda 21? agenda 21 was the non binding, it is non binding, ये याद रखना, it is non binding. ठीक है, and this is was the प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट. प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट मतलब समिट के बाद जो एजेंडा रहता है उसका एक 21 एजेंडा था जो नॉन बाइंडिंग है नेचर, एंड दैट इज कॉल्ड द एजेंडा 21. ओके, देन रियो समिट, इसी द अर्थ समिट ये हुआ था कब? 1992. एंड दिस ब्रांडलैंड रिपोर्ट ये हुआ था 1986. ओके, जस्ट याद रखना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, अगर कहीं लिखना हो तो लिख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड अंडर व्हिच फार्मर्स ग्रो ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस ऑन देयर लैंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, एक मतलब वेरी स्टैटिक पार्ट है और इसका आंसर जो होगा वो होगा फार्म फॉरेस्ट्री. फार्म फॉरेस्ट्री के ऑल्सो बोलता है एगो फॉरेस्ट्री, मतलब जहाँ पे हम कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल जो ट्रीज है हम उगा सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फार्म फॉरेस्ट्री. ओके, नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ IPBES, एंड इसका सही
आंसर है इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। ओके, जस्ट याद रखना, बहुत स्टैटिक है, इसमें और कुछ जानना नहीं है। अगर जानना होगा तो आई विल ऐड द इन्फॉर्मेशन। ओके, जहाँ लगेगा मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट, रिफॉरेस्टेशन मीन्स, व्हाट इज मीन बाय द रिफॉरेस्टेशन? प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। लाइक व्हेन रिफॉरेस्टेशन मीन्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, द देन गो थ्रू द ऑप्शंस, विजिटिंग द फॉरेस्ट। मतलब ये अगर ऐसे ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर लास्ट में आएगा री एनफोर्सिंग फॉरेस्ट, अच्छा इसका री एनफोर्सिंग का हम लोग को पता नहीं चलता। नेक्स्ट आता है टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द प्लांटिंग ट्रीज, कोई सेंस नहीं इस बात का। प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, अगर ये रिफॉरेस्टेशन नहीं है तो और कौन क्या है? मतलब इसका ही तो मतलब ज़्यादा मीनिंग यही दिख रहा है। सो जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस, यू विल अंडरस्टैंड मतलब क्या कहना चाहता है। इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 15, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चिपको मूवमेंट? द ऑप्शन इज सी, सेफ्ट्रीज एंड फॉरेस्ट। इसमें अलग कुछ जानना नहीं है, ठीक है। देन आता है स्पीसीज दैट कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग सर्च इन इट्स एरिया ऑफ हैबिटेशन इज सेड टू बी हुई स्पीसीज। अब किसी चीज़ एक पर्टिकुलर जगह पे अगर नहीं मिलेगा तो क्या वो एक्सटिंक्ट हो गया? जो बोलता है विलुप्त प्राय, मतलब बंगाली में बोलता है विलुप्त प्राय, मतलब ख़त्म ही हो गया ऐसे। नॉट रेयर, ओके, नॉट रेयर। Which of the following is not an environmental concern? Global warming is environmental concern. Increasing consumption and use of plastic, definitely. Microplastic, growing pollution level, also the environmental concern, but said not. Rising ozone layer. Rising ozone layer is good for environment, but अगर ओजोन लेयर का अगर थीन हो जाएगा, मतलब अगर बहुत छोटा हो जाएगा ना ये वाला, तो ये ख़राब है। क्यों? क्योंकि जो सन रेज है वो इजीली अर्थ पे आ जाएगा। सो रेजिंग ओजोन लेयर इज़ वेरी गुड, बट डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज़ द मेजर रीज़न फॉर एनवायरमेंट, मतलब फॉर यू कैन से इट इज़ मेजर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। ओके, देन 18, Andaman teal is an example of which category of animal species? This is endemic species. Endemic species means those plants and elements, species में क्या क्या होता है? plants होता है and animals both. Okay, plants and animals that exist only in one geographical region. अब ये दे भी सकता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट इन वन जोग्राफिकल रीजन, व्हाट इज कॉल्ड? एंडेमिक। ओके, सो अंडमान टील इज ए एंडेमिक स्पीसीज. इफ यू वांट टू रिमेंबर 2-3 more endemic species, that would be Asiatic lion, Kashmir stag, as I said, critically endangered, I said, endemic species, and purple frog. Okay. Next, which national park in India has the maximum number of lions? That is Kaziranga National Park. Okay, it is also famous for the one horned rhino, as I mentioned earlier. Kaziranga, केबुल लमजाओ इंपॉर्टेंट है, क्या है? मणिपुर में है। इसका साथ और एक चीज़ है जो है लोकटक लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक लेक। ओके, दिस इज द फ्लोटिंग लेक. Okay, then a Nagarhole, that is in Karnataka, and Kana, that is in Madhya Pradesh. Okay, next, which of the following was the first official step to protect the environment? What is the first official step? That is the Stockholm Conference held on 1972. Then when was the last Earth Summit was held? That is in 2012. Okay, there is 5 Earth Summit: first, second, third, fourth, and fifth one. First, that is already I said, 1972, Stockholm. Second, after 10 years, 1982, Nairobi. Third, Nairobi where? Kenya.
ऑलरेडी यूएनईपी का हेडक्वार्टर है. थर्ड इज रियो दे जेनेरियो, दैट इज इन ब्राज़ील. कब होता है? आफ्टर 10 years 1992 रियो दे जेनेरियो, दैट अर्थ समिट ऑल्सो यू टॉक्ट अबाउट. देन इज फोर्थ, दैट इज इन 2002 में आफ्टर 10 years, दैट इज इन जोहानिसबर्ग. एंड द फिफ्थ वन, that is also in the Rio de Janeiro 2012. This last Earth Summit Rio de Janeiro. तो रियो de Janeiro में 2 होता है, एक 1992 अर्थ समिट, 2012 वाला का ऑल्सो बोलता है कि रियो +20, मतलब 1992 में हुआ था +20, दैट इज 2012. सो ये याद रखिएगा कि कितना अर्थ समिट है एंड कौन सा ईयर में. 1972 एवरी 10 years अर्थ समिट हेल्ड. ओके. देन आता है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1981, इजी आंसर. एंड इसके साथ और एक चीज़ है 1974 जिसमें CPCB कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो भी एस्टेब्लिश होता है. जस्ट कीप इन माइंड दैट. ओके. द बोरलॉग अवार्ड इज गिवन आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ, वी ऑल नो दैट इज एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट. इट इज़ वेरी मतलब ईजी वन, बट दो मतलब मेन बहुत लोगों को याद नहीं आएगा, इसलिए मैं दे दिया. बोरलॉग कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सॉरी. और इंडिया में कौन है? इन इंडिया MS स्वामीनाथन. ओके. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? सेकेंड FY में. अच्छा, फर्स्ट FY में हम लोग किस पे ज़्यादा फोकस किए थे? हेवी इंडस्ट्रीज. ओके. ओके. देन आता है द नमामि गंगा प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000. नमामि गंगा प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2014 में. ओके. एंड इसके साथ और कुछ है, नेशनल NGRBA जो है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है. लेटर ये क्या होता है? मार्च हो जाता है, मार्च नहीं, रीनेम होता जाता है, जिसका नाम होता है नेशनल गंगा काउंसिल 2016 में. अभी ये क्यों हुआ? बिकॉज द गवर्नमेंट चेंज, द जो करंट में रहता है वो कभी चाहता नहीं कि पिछला कोई गवर्नमेंट का कोई मतलब स्कीम्स उसका नाम पे ही चलता है, तो दे जस्ट चेंज द स्कीम्स नेम्स और एनी काइंड ऑफ प्लान दे हैव. सो ये है. नेक्स्ट आते हैं, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वाज पास्ड? दैट इज इन 2010. एंड द चेयरमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट currently, the judicial member, Justice Prakash Srivastava. Okay. National Green Tribunal, this is the chairman is the from the judicial part. Okay. For the pollution control and other things. Okay. Who was the chief drafter of Article 370? Very important. As the constitution was drafted by the B.R. Ambedkar, but this one was drafted by the N. Gopal Swamy Iyengar. Article 370 was there from the from the 1948 and that time, and this was scrapped in, we all know, 5th August. Very important, 2019. Okay. At where it revokes the special status of J and K along with Article 35A. Okay. Which office of the government of India is the governing department of the nuclear energy? It also said atomic energy, also you can say the department of atomic energy, you can say. This is the office of the prime minister. Prime minister के पास खुद रहता है कि this department of the nuclear energy, because it's very much एक डिवास्टेटिंग, नॉट वेरी पावरफुल एक डिपार्टमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर खुद अपने के पास ही रखते हैं. अब इसका जो डिपार्टमेंट है, इनका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन द मुंबई, महाराष्ट्र. एंड द थिंग इज द फाउंडर ऑफ दिस इज होमी जे भाभा एंड इट एस्टेब्लिश इन द ईयर 1954. ओके. Thereafter, Central Food Technological Research Institute is situated at where? That is in Mysore.
we can easily connect with Mysore with the Tipu Sultan. We can the any the policy Srirangapatnam, anything you can remember that. I'm not going in that arena, but I can say the Hyderabad, the headquarter of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, that the IPS Training Institute here, and it was established in the year 1948. And from this we can say Sardar Vallabhbhai Patel, the Sardar Sarovar Dam also important, Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. We all know the Kevadia district and that thing. And from the SBPNA we also know the Labasna, that is the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administrations, IS training place, and the headquarter is the place is in the Mussoorie. Okay, and this was established in the year 1959 or 1959. Sorry. Okay, next, where is the national, okay ठीक है इसको उड़ा देते हैं यहाँ पे. Where is the National Institute for Mental Health and Neuroscience located? And this is in the Bangalore. Okay, nothing no information is here to be added. Just remember where the National Institute of Mental Health and Neuroscience is located, just Bangalore. Okay, then आता है which year is the declared as International Year of Glacier Preservations, that is 2025 this year. And the day, World Day अगर बोलेंगे तो World Day of Glaciers also celebrated in 21st March. Okay, इंटरनेशनल ईयर्स बहुत सारा होता है कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स, ऐसे करके बहुत इंटरनेशनल ईयर्स है. जस्ट जस्ट सर्च इन गूगल, यू विल फाइंड. Then National Ambient Air Quality Monitoring Program was initiated by, this is CPCB, already I said 1974 it was established, 1974 Act. Okay, National Ambient Air Quality Monitoring. Then आता है the word ecosystem was coined by, we all know very famous questions, PYQs है, A.G. Tansley. Okay, here also another information is here, Walter G. Rawson, he coined biodiversity, the term biodiversity. ओके, सो आज का वीडियो इतना तक. नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके. कीप वॉचिंग. बाय बाय.